السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ۔ آج جون کی 20 تاریخ ہے اور بابو سر ٹاپ پر یوں لگتا ہے جیسے فروری کی 20 تاریخ ہو۔ یک بستہ ہوائیں تو یہاں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ 2015 سے پہلے اس مقام پر سناٹا چھایا ہوتا تھا۔ ہری بھری گھاس، برف، دور دراز کچھ بھیڑ بکریاں اور ایک عدد چرواہا۔ ہر طرف صاف ستھرا ماحول، قدرتی پھولوں کی بھینی بھینی مہک ماحول کو معطر کر دیتی۔ لیکن جب پاکستان کے حضرت انسان نے یہاں کا رخ کیا تو اس خوبصورت قدرتی ماحول کو بھی کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ 10 سال قبل جو بھی یہاں پہلی بار آتا وہ اس خاموشی اور سناٹے کو دیکھ کر تھوڑا ڈر سا جاتا۔ آج کل تو یہاں ہر طرف شور شرابہ، ہلڑ بازی، کوڑا کرکٹ ہے۔ اب تو ادھر آنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں پہلی بار یہاں سے 2010 میں گزرا اور پہلا خیال یہی آیا کہ اچھا تو یہ ہے وہ اونچا پہاڑ جس کی وجہ سے اکثر میری فلائٹ کینسل ہو جایا کرتی تھی، یا اسی مقام کے پاس سے ہمارا جہاز خراب موسم کی وجہ سے اسلام آباد واپس لینڈ کر جایا کرتا تھا۔ 1 یا 2 دن فلائٹ کا کینسل ہونا تو معمول کی بات تھی، لیکن جولائی 1994 میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ لگاتار 5 دن ہم جہاز میں مفت کا جھولا جھول کر واپس گھر لوٹ جاتے، اور محلے والے پہلے 2 دن تو ہنستے رہے، لیکن تیسرے دن تو لوگوں نے حیرانگی کا اظہار نہ کیا، سمجھے یہ بندہ جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہا ہے۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ گھر والوں نے بھی روزانہ صبح اللہ حافظ کہنا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ ہر روز مسافر بھی تبدیل ہو جایا کرتے، لیکن ہم تو ڈھیٹ تھے کہ جانا ہے تو صرف PIA کے جہاز پر، کون اتنا لمبا اور پرخطر سفر کرے۔ 5ویں دن گلگت ایئرپورٹ پر پہنچ کر والدین کو مطلع کیا تو پہلے انہوں نے مذاق سمجھ کر بات ہوا میں اڑا دی، لیکن جب PCO کے پاس درپردہ مقامی زبان کی بازگشت نے ابو مرحوم کے کانوں پر دستک دی تو پھر انہیں یقین آیا، میرا لاڈلا تو واقعی گلگت پہنچ چکا ہے۔ گلگت بلتستان سے جڑے سینکڑوں یادگار واقعات سے بھرپور میری یادیں وابستہ ہیں، ان کا تذکرہ گاہے بگاہے کرتا رہوں گا۔ بابو سر ٹاپ سے چلاس تک تقریباً 51 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم شاہراہ قراقرم کے ذریعے گلگت روانہ ہوں گے۔ ہم 13,700 فٹ بلندی سے خطرناک بل کھاتی سڑک سے انتہائی کم رفتاری کے ساتھ چلاس شہر کی جانب نیچے اتریں گے۔ جب ہم بابو سر ٹاؤن کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ پہاڑوں کی رنگت اور بناوٹ بھی یکسر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھوری رنگت والے بلند و بالا پہاڑ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ہم کافی نیچے آ چکے ہیں، تو یہاں آپ نے سپیڈ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ نے گاڑی چلانی ہے، رفتار آپ نے کم رکھنی ہے۔ تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے فوٹوگرافی اور پھر چلیں گے جی چلاس کی طرف۔ یہ دیکھیں جی، آہا خوبصورت۔ اور جو ہم نیچے جائیں گے ٹمپریچر چینج ہو جائے گا، یعنی سردی کم ہو جائے گی۔ ابھی ہم چاکلیٹس کھا رہے ہیں جی بڑے مزے سے، اور ساتھ سفر بھی جاری ہے۔ جی ناظرین اکرام، ابھی ہم بابو سر کا جو مین گاؤں ہے، ٹاؤن ہے، وہاں رکے ہیں۔ یہاں جو ہی ہم پہنچے تو یہ میرے ساتھ آپ کو 2 پولیس والے دکھائی دے رہے ہیں، ٹورسٹ پولیس، سوری۔ تو انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ آپ نے 10 منٹ یہاں رکنا ہے۔ تو کیوں جی بھائی جان، آپ نے ہمیں کیوں روکا یہاں پہ؟ اس لیے روکا ہے کہ ویل گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اترائی ہے، اچھا، تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے یہاں ہم 10 منٹ روکتے ہیں۔ صحیح ہے، 10 منٹ کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ابھی آپ آگے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ ٹورسٹ کو کس قسم کی سہولیات یہاں پہ فراہم کرتے ہیں؟ ٹورسٹ کے یہاں سب اترائی ہے جی، تو اس لیے ہم یہاں ان کو ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں 10 منٹ ٹھہرو آرام سے، پھر وہاں جو اگر 10 منٹ نہیں ٹھہرا تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اچھا نہیں، میرا مطلب یہ کہنے کا یہ تو بات ہو گئی نا، ہاں، لوگ یعنی میرے جیسے لوگ جب ادھر آتے ہیں وہ اپنے آپ کو
कितना महफूज समझें कि हम लोग महफूज हैं इस एरिया में, हमें कोई खतरा नहीं है? हम 24 घंटा उनकी जान व माल की हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे 24 घंटे होते हैं आप? 24 घंटे। सही। तिब्बी सहूलियात भी हैं यहाँ पे अगर कोई जख्मी हो जाए या कुछ इस तरह की बात हो? हमारे साथ सब कुछ दवाई मौजूद है। हम अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच जनाब। वादी चिल्लास की कहानी भी बहुत पुरानी है। हजारों साल से इंसान इस वादी में रिहाइश पजीर है। यहाँ मौजूद ज़माने कदीम के आसार आपको दौरे माजी में ले जाते हैं। तकरीबन 5000 साल पीछे अगर निगाह दौड़ाई जाए तो बुद्ध मत मजहब के आसार दरियाए सिंध के दाएं बाएं शित्याल से लेकर स्कर्दू तक दिखाई देंगे। शहराए रेशम इतनी ही कदीम है जितना कि चीन, गिलगित बल्तिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतें। इन ममालिक के लोग तिजारत की गर्ज से यहाँ आते या चिल्लास में मौजूद मेहमान सराय में रात गुजारते और फिर अपनी अगली मंजिल पर गामजन हो जाते। नक्श निगारी अज़ल से ही इंसान की फितरत में शामिल है। वो जहाँ भी जाता है अपने कुछ न कुछ नखूश छोड़ाता है। चिल्लास की कहानी भी कुछ इसी तरह है। हजारहा साल पहले राहगीरों, शिकारियों और जंगो जदल में मसरूफ सिपाहियों ने कमाल महारत से कभी हैकल पत्थरों पर इंसानी और जानवरों की अशकाल कंदा की जो के देखने के लायक हैं। ज्यादातर बुद्ध मत दौर के नकूश हैं। ये सड़क जहां कराकुरम हाईवे से जाकर मिलती है उसी मकाम पर पुल से पहले ऐसे निशानात आप देख सकते हैं। चिल्लास जाते हुए हम लोग रुके हैं जी परेका के मकाम पे और इधर दाएं बाएं पानी हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया। चाय पीते हैं, थोड़ी देर यहाँ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इस पानी की आवाज़ ने हमें मजबूर किया कि हम लोग यहाँ रुकें। ये देखो नीचे, ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं। यहाँ आप नीचे बैठ के आराम सुकून के साथ खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये देखो, वाह, अमेजिंग। ये पानी बाबूसर टॉप से आ रहा है, बिल्कुल ऊपर जो ग्लेशियर है वहाँ से ये पानी आ रहा है। और इस पानी का बहाव, इस पानी का रंग साफ शफाफ रंग और बहाव बहुत तेज़ है माशाल्लाह। और ये यहाँ से बहता हुआ जाएगा सीधा दरियाए सिंध में। ये है जी हमारा खूबसूरत पाकिस्तान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। यहाँ बसने वाले लोग जफाकश, मेहमान नवाज और सादा लोग हैं। यहाँ की खवातीन सख्ती से पर्दे की पाबंदी करती हैं, लिहाजा इन इलाकों से गुजरते वक्त आप मकामी रस्म व रिवाज और रिवायात की पासदारी करें। ये हमारा इखलाकी और मजहबी फरीज़ा है। और ये है जी टक शॉप, नदी के किनारे चाय का इंतज़ार हो रहा। हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। चिल्लास यहाँ से 13 किलोमीटर है। चाय भी हमने और रेस्ट किया, गाड़ी को भी रेस्ट दी। अब जो है इंशाल्लाह हमारा जो पड़ाव होगा वो होगा जी गिलगित में। पहले हमारा प्लान था दारेल जाने का, लेकिन हम जाएंगे गिलगित और मुख्तलिफ वादियों से घूमते हुए फिर हम वापस आएंगे, क्योंकि टाइम को हमने देख के ही फैसले करने होते हैं। थोड़ा सा रीशेड्यूल करेंगे इसको। और मनाज़र बहुत ही खूबसूरत हैं, देखने के लायक हैं। इस वैली में जब आप आएंगे तो दर्जा हरारत बिल्कुल मुख्तलिफ चेंज हो जाया करता है। अभी हम नॉर्मल यानी टी शर्ट में यहाँ घूमते फिरते रहे, जूं आगे जाएंगे दर्जा हरारत भी बढ़ता जाएगा। तो इंशाल्लाह जी आपको मज़ा आएगा। रास्ते में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा।
दर्रा बाबूसर में ज़मीन इतनी नहीं कि काश्तकारी की जा सके, लेकिन लोग मेहनती और जफाकश हैं, इसीलिए छोटे छोटे खेतों को भी ज़ेरे इस्तेमाल लाकर वायद हासिल करते हैं। खसूसन मटर की काश्त वसी पैमाने पर की जाती है और जब पाकिस्तान के तमाम शहरों में मटर का मौसम ख़त्म हो जाता है तो जुलाई अगस्त में बाबूसर और चिल्लास के देहात हमें ताज़ा मटर मुहैया करते हैं। शदीद सर्दी के मौसम में मज़ेदार चलगोज़ा हमारे जिस्म को हरारत पहुंचाता है और ये सौगात चिल्लास के जंगलात में पैदा होती है। दीगर मेवाजात में अखरोट और खुबानी काबिले ज़िक्र हैं। चिल्लास शहर ज़िला दियामीर का डिविजनल हेडक्वार्टर है, जो कि दरियाए सिंध के किनारे शाहराए रेशम यानी कराकोरम हाईवे के अतराफ जिंदगी की बहारें लिए मकामी अफराद और मेहमान सयाहों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। चिल्लास का मौसम गिलगित बल्तिस्तान के दीगर शहरों से यकसर मुख्तलिफ है। जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और दिसंबर जनवरी फरवरी में कम से कम दर्जा हरारत 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ज्यादा बारिशें मार्च, अप्रैल और मई में होती हैं, जिनकी औसत मिकदार 35 से 46 मिलीमीटर तक रहती है। कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के मुताबिक चिल्लास की आबो हवा कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट दर्जाबंदी में आती है, यानी सर्दियों में खुश्क और सर्द जबकि गर्मियों में खुश्क और गर्म। इस शहर की सतह समुंदर से बुलंदी 4150 फुट है। चाहे आप कराकोरम हाईवे से आएं या बरास्ता बाबूसर या जहाज में, आपको चिल्लास से गुजर कर ही जाना होगा। सफर बजरिया जहाज का ये हरगिज मतलब नहीं कि जहाज यहाँ लैंड करता है। आप इस शहर की हवाओं में मैवे परवाज होंगे और दरियाए सिंध की लकीर पर उड़ते हुए गिलगित जाकर उतरेंगे। हमारा अगला सफर दरियाए सिंध के साथ साथ शाहराए कराकोरम पर होगा। अब हम आपसे इस दुआ के साथ इजाजत चाहेंगे कि जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हमेशा अपनी रहमतों का साया आप और आपके अहले खाना पर कायम रखे। दुआ कीजिएगा हमारा खूबसूरत मुल्क हमेशा शादबाद रहे और हम यूं ही इसकी हसीन वादियों में घूमते फिरते रहें। आपको हमारा ये सफ़र कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले सफ़र तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।